Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Basic Geometrical Concepts. Focus points, plane, point, line, line segment, ray, kinds of lines, angles, representation of special pairs of angles, triangles and properties of triangles. In the previous class, we have already learned the basic geometrical concepts. Now, let us familiarize ourselves with some important concepts of geometry for better understanding. देखिए previous class में भी आप कुछ concepts के बारे में पढ़ के आए थे जो basic geometry के concepts थे, okay? तो चलिए इसमें इस chapter में कुछ और important concepts के बारे में पढ़ेंगे, right? सबसे पहले है plane. A plane is a flat surface which can be extended endlessly in all the directions. It has only length and breadth. The paper we work on is just a part of a plane. A plane can be named by using any 3 points on it. The adjacent figure shows plane ABC. However, the order of the point does not matter. Surface of blackboard, surface of book, screen of flat TV, etc. are some examples of plane in daily life. देखिए प्लेन का मतलब क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस जिसको हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं हर डायरेक्शन में. सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है. जैसे जिस पेपर पे हम काम करते हैं ना, वो पार्ट है आपके प्लेन का. तो प्लेन को जैसे आपने नाम दे दिया किसी भी 3 पॉइंट से, जैसे यहाँ पे आपको नाम दे रखे ना ABC, ये आपका प्लेन है. ओके, तो जैसे कि ब्लैक बोर्ड का आपका सरफेस होता है. ओके, जैसे कि आपके पास ये स्क्रीन है, दिस इज ऑल्सो प्लेन. आपका फ्लैट टीवी का जो स्क्रीन होता है, ये सारे आपके प्लेन्स के एग्जांपल्स हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अ पॉइंट इज an exact location in space. It has no length and no breadth. It is represented by a dot and labeled by a capital letter of English alphabet. The points show alongside are named A, B, P, X. Distant star in the sky, tip of the pencil, vertex of a square, etc. are some examples of point in daily life. Point आपका exact location होता है स्पेस में. ओके, इसकी लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होती है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डॉट से. ओके, और इसको कैपिटल लेटर्स में जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश, उसको नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल ABC, व्हाटएवर. ओके, तो देखिए आपका जो पॉइंट्स, आपका जैसे डिस्टेंस स्टार आपको स्काई में नजर आता है, पॉइंट की तरह तो नजर आता है, राइट? पेंसिल की जैसे टिप है, एक आपका पॉइंट है. पेन की आपकी टिप है, पॉइंट है. ये सारे. ओके, नेक्स्ट लाइन. A line is a straight path of point that extends on and on in both the directions without ever ending. The length of a line cannot be measured. It is represented by arrowheads at both the ends. A line is named by using any 2 points on the line. The line shown alongside is named as AB. This one. Okay. And BA भी आप ऐसे बोल सकते हैं. Railway track, horizon, height of tree, etc. are some examples of line in daily life. देखिए लाइन आपका एक स्ट्रेट पाथ होता है. ओके, जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में से बढ़ा सकते हैं. आप इसे इधर से भी और राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं. ओके, तो जैसे लाइन को आप नाम देना, कोई भी 2 पॉइंट्स दे दीजिए. ओके, और उसको शो कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल आपका ये AB है, तो आपका सिंबल होता है दिस. ओके, आप इसे BA भी कह सकते हैं, लाइन BA. ओके, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. A part of a line is called a line segment. It has a fixed length that can be measured. The points at which of line segment begins and ends are called its endpoints. Every line segment has 2 endpoints. अब line segment आपका line का ही point होता है, but इसका fixed length होता है, जिसे हम measure कर सकते हैं. इसका beginning और ending point होता है, तो हर line segment के आपके 2 end points होते हैं, right? The line segment shown alongside has A and B as endpoints. It is named by using these endpoints as AB line segment or BA. Okay, अब आपके पास जो line segment है, उनके आपके endpoints होते हैं. इनकी fixed length होती है जिसे measure किया जा सकता है. इसको हम कैसे show करते हैं? line segment. Okay, right? या फिर BA. Okay. Edge of pencil box, edge of
table, edge of a ruler, etc. Some examples of line segment in daily life. तो देखिए आपका जैसे टेबल का एज है, आपका रूलर का एज है, ये सारे ही लाइन सेगमेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट रे. A ray is a straight path of point that has one endpoint and goes on and on in one direction. The ray shown alongside begins at point A and goes through point B. It is named as AB, where the first letter, that is A, is the end point. Rays of torch, rays of headlight, of bus, sun rays, etc. Some examples of ray in daily life. अच्छा, रे आपका स्ट्रेट पाथ होता है, जैसे एक एरो होता है ना, एरो. ओके, अब इसको देखिए, दिस वन इज द एंड पॉइंट. अब आप रे को एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं कितना भी. ओके, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी एंड दिस. ओके, ये आपका रे ए बी है. डिफरेंस अमंग लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. अब देखिए ये जो हमने पढ़े अभी तीनों ही, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है. नाउ वी आर फेमिलियर विद लाइन्स, लाइन सेगमेंट एंड रेज. लेट अस लिस्ट देयर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. फर्स्ट लाइन, दिस इज अ लाइन AB, दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB, दिस इज अ रे AB. देखिए तीनों ही कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना. A line has no endpoints. Remember that a line segment has two endpoints. A ray has only one endpoint. A line has no fixed length, क्योंकि इसको कहाँ भी आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. A line segment has a fixed length. A ray has no fixed length, क्योंकि रे को भी हम एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. A line cannot be measured. A line segment can be measured. A ray cannot be measured. Okay. Next, kinds of lines. There are many kinds of lines, but in this class we will study only 3 kinds of lines: parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines. Number 1, parallel lines. If the distance between any two lines at all points always remains same, then the lines are called parallel lines. In the figure, lines A, B, and C, D are parallel to each other. Parallel lines never intersect each other. देखिए, अगर दो लाइन्स के बीच में ना आपका डिस्टेंस सेम है तो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं. ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती हैं, राइट. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हेन एनी टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, देन द लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. इन द फिगर, लाइन ए बी एंड सी डी क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट ओ. एंड लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब दो स्ट्रेट, देखिए पैरेलल लाइंस पे स्ट्रेट लाइन थी बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, लेकिन जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें इस तरह से, राइट, तो ये आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. थर्ड, परपेंडिकुलर लाइंस. When any two straight lines intersect each other at an angle of 90, then the lines are called perpendicular lines. Or if a vertical straight line falls on a horizontal straight line, then both the lines are called perpendicular to each other. In the given figure, AB is horizontal line which is intersected by a vertical line DC at point E at 90 degree. Hence, lines DC and AB are perpendicular to each other. अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब दो लाइंस स्ट्रेट हों बट वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे. ओके, तभी वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है. ओके, या फिर कोई वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपकी, जैसे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे आपकी पड़ रही है ना, तो ये जो आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट, तो ये आपका परपेंडिकुलर, इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे इसमें देखिए ए बी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपका जो ये डी सी है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, ई पॉइंट पे, तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों ही आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, राइट. चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई ईच एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट ऑल्सो नेम देम. अब आपको बताना है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे, और उनका नेम भी बताना. ओके, सो देखिए आपके दोनों साइड एरोज हैं, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों साइड्स एरो हैं, तो आपका सबसे पहले आप इसके नाम लिखेंगे. और ये क्या है आपकी लाइन. ओके, बी आपका इस तरह से एरो की शेप में, पी क्यू, तो आप इसे देंगे पी क्यू. पी क्यू इज व्हाट, रे. इसी तरह से आर एस जो है आपका, इसके देखिए फिक्स पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स हैं, तो ये आपकी है लाइन सेगमेंट, और इसका नाम देंगे आप आर एस एंड इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे.
right? Angles. An angle is a figure formed by two rays meeting at a common endpoint. The common endpoint is called the vertex of the angle, and the two rays are called the arms of the angle. Some ideas of an angle can be observed by looking at the following pictures. The symbol for representing the word angle is this. अच्छा, एंगल किसे कहते हैं? जब आपकी दो रेज हैं आपकी, फॉर एग्जांपल एक रे आपकी ये है और एक रे आपकी ये है, तो दो रे जहाँ पे आपकी मीट करती है, कॉमन एंड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपका एंगल बनता है, उसे हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल भी कहते हैं. ओके, एंड ये जो रेज होती है, ये आर्म्स इन्हें हम कहते हैं. ठीक है, एंगल की जो रेज है आपकी आर्म है. ओके, अब कुछ आइडिया देखिए आपको इस तरह से दिया गया है, जैसे कि देखिए ये आपका एंगल है, दिस वन इज एंगल, राइट. देखिए ये वर्टेक्स होता है आपका, ये कॉर्नर. ओके, एंड ये जो दो साइड्स होते हैं आपकी रेस, वो आपकी आर्म होती है, और अंदर जो आपका है ये एंगल बन रहा है. ओके, नेमिंग एन एंगल इज नेम्ड बाय फॉलोइंग थ्री वेज यूजिंग three letters, that is a point on one ray, vertex, and a point on the other ray. The adjacent angle is named as AOB or BOA, right? आप इसको चाहे तो AOB बोले या फिर BOA. Using only one letter, that is the vertex, the adjacent angle is also named as angle O. Using a number within the rays of the angle, the adjacent angle is also named as angle 1. चलिए अब इसको नाम कैसे देते हैं एंगल का. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंगल है AOB. ओके, दिस इज द वर्टेक्स. पहला तरीका क्या है, हम लिखेंगे एंगल, वर्टेक्स आपका हमेशा बीच में आएगा. ओके, एंगल AOB या फिर एंगल BOA. ओके, एक तरीका तो आपका ये है. आप सेकेंड मेथड है आपका, आप सीधे लिख दीजिए एंगल O. ओके, और थर्ड क्या है, अगर आपने इसको कोई नंबरिंग दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 1, एंगल 1. ओके, चलिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. The region between the arms of the angles, that is inside the angle, is called interior of the angle. For example, points PQR are in the interior of angle AOB. देखिए जो रीजन होते हैं, ये एंगल है आपके. ओके, और ये जो आर्म्स है आपके, इसके अंदर का जो एरिया है, ओके, उसे हम कहेंगे इंटीरियर. ओके, इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा. जैसे कि इसमें आपको इंटीरियर एंगल दिए गए हैं, इंटीरियर पॉइंट्स दिए गए हैं PQ and R. ओके, नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड द रीजन ऑफ that lies outside the arms of the angle is called the exterior of the angle. अब एक्सटीरियर क्या है, आपके पास जो इसकी आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं, इसके बाहर का जो एरिया है, दिस इज एक्सटीरियर. ओके, अब एक्सटीरियर पॉइंट्स आपके कौन से हैं, देखिए आपको दिएगा S, T, X and Y are the exterior. So where is S, T, Y and okay, Y and X. ये जो ब्लैक से आपके अंडरलाइन या सर्कल किए गए आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं. ओके, चलिए अब इंटीरियर की बात हुई, एक्सटीरियर की बात हुई. अब देखते हैं द रीजन कंप्राइजेस ऑफ द टू आर्म्स ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द एंगल. अब ये आपका एंगल है, इसके अंदर का कुछ हिस्सा है, इसके बाहर का कुछ हिस्सा है. अब इसमें क्या है, देखिए पूछा है कि ये जो दो आर्म्स है ना, ये इनमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वो होंगे, ये आपकी एंगल की बाउंड्री हो गई. इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है इसकी बाउंड्री पे, तो कौन से पॉइंट्स है, देखिए F and G. देखिए F and G ये आपके आर्म्स पे हैं, राइट. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, उससे पहले मैथ्स फैक्ट. एन एंगल रिप्रेजेंट इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्लेन. एंगल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्लेन, राइट. चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डैश मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट. ठीक है, दो एंगल आपका बनता है जब दो मिलते हैं कॉमन एंड पॉइंट पे, तो दो क्या मिलते हैं आपके, टू रेज. एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. एंगल का सिंबल क्या होता है, दिस वन. ओके ओके, दिस वन. ओके, ये
Next topic is comparing angles. Observe the following angles. Look at the angle ABC and angle PQR and take the greater and cross the smaller one. अच्छा, इन दोनों में से कौन सा एंगल आपको बड़ा लग रहा है? आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये बड़ा है, तो इसको हम टिक करेंगे, ये स्मॉलर वन को हम क्रॉस करेंगे, राइट? Can you tell which of the following angles is greater or smaller simply by observing? Okay, अब पिछले केस में तो हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है? हमें तो दोनों सिमिलर ही नजर आ रहे हैं. तो sometimes you cannot compare the angles simply by observing them. In such case we need to measure them. तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? इनको मेजर करना पड़ता है, राइट? अब जैसे पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, दिस वन, इसमें तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये एंगल बड़ा है, बट जो नेक्स्ट आपके पास दोनों एंगल्स दिए गए हैं ये तो हमें क्या एकदम सेम लग रहे हैं. तो ऐसे केस में हम इन्हें मेजर करते हैं. तो मेजर कैसे करेंगे? मेजरिंग एंड ड्राइंग एन एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर. ओके, प्रोटेक्टर आपने देखा होगा आपके जियोमेट्री बॉक्स में मिलता है, ये इंस्ट्रूमेंट है ना. This is used to measure and draw angles of given measurement. There are two scales marked on the protector. Both scales are of measure 0 to 180 degree, but one starts from right hand and other from left. अब ये प्रोटेक्टर है आपका, ये आपका सेंटर होता है, ये बेस लाइन होती है और इसमें आपके दो स्केल्स होते हैं. एक आपका लेफ्ट से शुरू होता है, एक राइट से शुरू होता है, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक का. ओके, देखिए एक अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड से, ये नीचे वाली लाइन से 0 to 180 एंड लेफ्ट का 0 to 180. ओके, मैथ्स फैक्ट. यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज डिग्री. जो एंगल को मेजर करते हैं ना, उसका जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है. Measuring an angle. Let us learn how to measure an angle using a protector with the help of following example. Okay, अब आपको क्या करना है कि एक प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एंगल को मेजर करना है. See, you have given this angle x, y, z. तो आपको क्या करना है? स्टेप वाइज. स्टेप 1, place the center of the protector's base at the vertex of the angle. देखिए vertex है आपके पास ये, राइट? तो आपने प्रोटेक्टर को क्या करना है? जो एंगल का वर्टेक्स है आपने उस पर रख देना है. ओके, फर्स्ट स्टेप है. स्टेप 2, मेक श्योर दैट 0 डिग्री मार्क ऑफ द प्रोटेक्टर प्लेस्ड अलोंग वन रे एक्स वाई ऑफ द एंगल. अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है? देखिए जो 0 डिग्री मार्क है ना आपका, जो 0 डिग्री मार्क है आपका, वो प्लेस्ड होना चाहिए आपके एक रे में एक्स वाई पे. Okay, now step 3, read the value in the protector as indicated by the other ray yz of the angle. We find that xyz is equals to 60 degree. अब आपने क्या करना है? प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको रीड करना है. जैसे कि आपने यहाँ पे रखा बेस पे एंड देन आपकी ये वैल्यू आ रही है यहाँ 60 पे. ओके, तो ये एंगल आपका आएगा 60 डिग्री का. ओके, now drawing an angle. Let us learn how to draw an angle using a protector and a ruler with the help of following example. Draw an angle of 70 degree using the protector and ruler. Step 1, draw ray OA with the help of ruler. अब देखिए आपको रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से 70 डिग्री का एंगल बनाना है. कैसे बनाना है? देखिए सबसे पहले आप ना एक रे ड्रॉ कर लेंगे OA रूलर की हेल्प से, कितनी भी लेंथ की हो सकती है. Step 2, place the center of the protector's base at the vertex O. Align the base line of the protector with the ray OA so that 0 डिग्री मार्क इज ऑन OA. अब आपने एक रे बनाई OA फर्स्ट स्टेप में. फिर जो सेंटर है ना प्रोटेक्टर का, आपने उसको रखना है O पे. ओके, देन यूजिंग द इनर स्केल मार्क अ पॉइंट B एट 70. अब इनर स्केल का आपने यूज करना है. इनर मतलब ये जो आपका इनर स्केल है. फिर आपने जैसे आपने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा, फिर आपका जहाँ पे 70 आएगा डॉट लगा देंगे. ओके, एंड देन इसे क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. ओके, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन पॉइंट्स O and B विद द हेल्प ऑफ ए रूलर. सो एंगल BOA इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना रूलर एंड प्रोटेक्टर से, तो आपको एंगल्स बनाने आ जाएंगे, राइट? चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. मेजर एंड फाइंड द ग्रेटर एंगल इन ईच पेयर. अच्छा, अब आपको क्या करना है कि दोनों पेयर में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. आपको मेजर करके बताना पड़ेगा. ओके, तो देखिए फिलहाल तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसको. इन दोनों में से कौन सा बड़ा है आपका? दिस एंगल. एंड इन दोनों एंगल में से दिस एंगल. ओके, बट बाकी आपको जो है वो मेजर करके बताने पड़ेंगे. आप इनको स्पेशली लिखा गया है मेजर. इसमें भी देखिए आपका दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ग्रेटर देन.
ओके अब आप सोचेंगे ये कहाँ से एंगल बन गया, इट इज एक्चुअली 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री का जो एंगल है ना बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट काइंड ऑफ एंगल्स। एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड टू देयर मेजर्स। राइट एंगल, एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जो एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का है वो राइट एंगल होता है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट acute angle, angle that measures greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle। अब acute angle आपके क्या होते हैं, 0 डिग्री से बड़े but 90 डिग्री से छोटे। जो एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होगा वह acute angle। obtuse angle, angle that measures greater than 90 but less than 180 is called an obtuse angle। obtuse angle आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है but 180 डिग्री से छोटा, ओके। स्ट्रेट एंगल, एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका हमेशा 180 का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस पेज में, ओके। जैसे आपके 6 बजते हैं ना तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स 180 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब वो एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 से छोटा है, ओके। तो 360, इससे पहले मैं आपको कंप्लीट एंगल बताती हूँ। complete angle, a full turn is called a complete angle, the measure of complete angle is 360। complete angle आपका इस तरह से होता है 360, ओके। अब रिफ्लेक्स एंगल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका केक है ना, और केक का एक पीस ले लिया गया है इस तरह से, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ना, दिस एंगल, ये 360 से तो कम है बट 180 से तो ज़्यादा, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, ओके। चलिए मैथ्स फैक्ट देखते हैं। When two rays overlap each other in the same direction, the angle formed is of 0 degree। जब दो रेज ओवरलैप करती है ना सेम डायरेक्शन में तो एंगल बनता है 0 डिग्री। जैसे आपके 12 बजते हैं, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ओके। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। यूज द प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ओके। अब देखिए आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से इनका मेजर बताना है, ओके। सी ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, ओके। बाकी आपको मेजर करके बताना पड़ेगा प्रोटेक्टर से, राइट। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स। Vertically opposite angles, the angles formed by two intersecting lines having no common arm are called vertically opposite angles. Here AOD and COB as well as AOC and DOB are vertically opposite angles. So angle AOD is equals to COB and angle AOC is equals to DOB. अब vertically opposite angles क्या होते हैं? एंगल्स जो आपके बनते हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइन से जिनका कोई कॉमन आर्म नहीं होता। देखिए आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ओके। अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी, ये ओ सी एंड डी, ओके। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखिए ये एंगल जो है आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये आमने सामने है। और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये भी आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। सो उसको अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4, तो देखिए एंगल 1 आपका इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 की। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके स्टूडेंट्स। Next, adjacent angles. The angles that share a common arm and have the common vertex but do not overlap are called adjacent angles. Here, ABE and CBE are adjacent angles as they share a common arm, B and have the common vertex B. अच्छा, adjacent angles में क्या होता है कि common arm होती है, common vertex भी होता है, but वो overlap नहीं करते। जैसे example में आपको दिया गया A, B, C and this E, ओके। अब एक एंगल आपके पास ये है एंगल ABE एंड अगला एंगल आपके पास है एंगल CBE। अब इनका कॉमन आर्म कौन सी है देखेंगे, देखिए BE और BE दोनों में आ रहा है, ये कॉमन आर्म है लेकिन ये ओवरलैप नहीं हो रहे, तो ये एंगल आपके होते हैं
adjacent angles. Okay, next, complementary angle. Two angles whose sum of measure is 90 are called complementary angle. देखिए, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जाम्पल, ये 60 डिग्री आपका एंड दिस वन इज 30 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. दैट मीन्स ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स. Two angles whose sum of measure is 180 degree are called supplementary angles. Here again आपको दो एंगल्स दिए गए हैं और दोनों का ही जो सम है वो कितना आएगा, 120 और 60 को प्लस करेंगे तो 180. तो दो एंगल्स का जब सम 180 आता है तो आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, नेक्स्ट, congruent angles. The angles with same measure are called congruent angles. Here angle ABC is equals to 45 degree and angle DEF is equals to 45 degree. So angle ABC and DEF are congruent angles. देखिए, जब एंगल्स का सेम मेजर होता है, जैसे कि दोनों ही एंगल्स आपके क्या है 45 डिग्री के, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है. ओके, मैथ्स फैक्ट. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में बी एडजेसेंट एंगल्स एज वेल. अच्छा, आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं. ओके, एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर्स राइट ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं अगर इन एंगल्स में उनके पेयर लिखने हैं या फिर एडजेसेंट. अब देखिए, इसमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर आपके कौन से, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी या फिर सी बी डी भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं. ओके, सो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ए पार्ट में एंड बी पार्ट में देखते हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो आप कैसे लिखेंगे, एंगल एक्स ओ वाई. आपको इक्वल नहीं बताना, आपको सिर्फ पेयर बताना है. एक्स ओ वाई किसके होगा, इक्वल डब्ल्यू ओ एन की, एंगल डब्ल्यू ओ एन. एक तो ये पेयर हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के और दूसरा पेयर कौन सा हो गया आपका, देखते हैं दिस वन. दिस एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट टू दिस एंगल, एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ डब्ल्यू एंड वाई ओ. and don't forget to write this angle, okay, to write this sign of angle, right? चलिए, next topic, triangles. A plane closed figure bounded by three line segments is called a triangle. It is denoted by symbol this. This is triangle. ओके, अच्छा देखिए, प्लेन क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है उसे ट्राइंगल कहते हैं. ओके, ट्राइंगल का सिंबल होता है दिस. पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल. द एडजेसेंट फिगर शोज ट्राइंगल ABC. इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स. साइड, इट हैज थ्री साइड्स. इट हैज थ्री साइड्स. दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, थ्री साइड्स हो गए, 1 2 एंड 3. ये इसकी साइड्स हैं. वर्टेक्स, इट हैज थ्री वर्टेक्स, A, B, C. Okay, it has three angles, angle A, angle B and angle C. या इनको इस तरह से भी नाम दिया जा सकता है. ओके, तो देखिए आपका जो ट्रायंगल है इसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री इसके वर्टेक्स होते हैं. ओके, और थ्री वर्टेक्स है तो एंगल्स भी कितने होंगे, थ्री होंगे, राइट. तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ट्रायंगल्स का वो देखते हैं. Triangles are classified on the basis of their sides and angles. On the basis of sides. अच्छा, साइड के बेसिस पे कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहले आपका scalene triangle. A triangle whose all three sides are unequal in length is called a scalene triangle. वो ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड्स अलग अलग है, सेम नहीं है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल है. Next is isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal in length. जिसमें दो sides आपकी equal होती है वो isosceles triangle होता है. For example देखिए, इस triangle में आपकी दोनों sides equal हैं, third is unequal, but दो sides equal है, right? Last one is equilateral triangle. A triangle whose all three sides are equal in length is called an equilateral triangle. देखिए, ये जो तीनों sides आपकी equal हैं तो equilateral triangle. Okay? तो साइड्स के बेसिस पे आपके थ्री ट्रायंगल्स हैं. स्केलेन जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड इक्विलेटर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, मैथ्स फैक्ट. इन अ स्केलेन ट्रायंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर आल्सो
unequal. In an isosceles triangle, the angles opposite to equal sides are also equal. In an equilateral triangle, all the angles are of equal measures of 60 degree. देखिए स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं उसमें आपके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं इक्वल होते हैं, मैंने क्या बोला? अनइक्वल ही बोला था, थर्ड लाइन से बोलते हैं. In an equilateral triangle, all the angles are of equal measure of 60 degree. देखिए स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं उसके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होंगे 60 डिग्री के. ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है तो क्या होगा? सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल. A triangle whose all the three angles are acute less than 90 degree are called an acute angle triangle. Acute angle triangle वो होता है जिसमें आपके तीनों ही एंगल्स acute हो. Acute मतलब कि 90 डिग्री से कम हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एंगल, तीनों ही एंगल 90 से कम है तो ये acute angled triangle है. ओके, नेक्स्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल. A triangle whose any one of the angles measures 90 degree and other two angles are acute angles is called a right angle triangle. अब right angle triangle क्या होता है कि उसमें एक आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का और बाकी के जो दो बचे वो आपके 90 से कम हो, तो ये acute angle triangle. Okay, next obtuse angle triangle. A triangle whose one angle is an obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree and the other two angles are acute angles less than 90 degree is called an obtuse angled triangle. अब obtuse angle triangle में एक आपका जो एंगल है वो 90 से बड़ा होगा और बाकी के जो दो होंगे वो आपके acute angles होंगे. राइट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी 1, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. आपकी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो दो साइड का जो सम होगा उसकी जो लेंथ का सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा. ओके, जैसे कि आपके पास देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है तो इसमें आप प्लस करेंगे. देखिए जैसे कि ए बी और आपने बी सी को प्लस किया, ए बी प्लस बी सी, ये आपका ग्रेटर होना चाहिए ए सी से. ओके, तो ए बी आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड बी सी आपके पास कितना है? 6 सेंटीमीटर. इट शुड बी ग्रेटर देन ए सी. ए सी है 4 सेंटीमीटर, तो देखिए 9 मीटर. ये क्लियरली आपका यहाँ पे सेंटीमीटर, ये आपका क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है. ओके, इसी तरह से आप कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, कोई भी दो साइड्स, जैसे कि आपने इन दोनों साइड्स को लिया, ये थर्ड साइड से इनका जो सम है बड़ा आएगा. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 2, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. अच्छा देखिए आपका जो ट्रायंगल है चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, हमेशा ही तीनों ही एंगल्स का जो सम है वो आपका हमेशा ही 180 डिग्री रहेगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. जैसे कि इस केस में आपको दिया गया है 50 प्लस 55 प्लस 75. अगर आप तीनों को ही प्लस करेंगे ना तो ये 180 डिग्री आएगा. राइट, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन अलॉन्ग साइड ट्राइंगल. ओके, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, उसकी 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड आपको नहीं दी गई है. ओके, अब आपको पता है कि तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है? 180. ओके, तो आप क्या करेंगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल x जो है वो कितने का है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो x ही दिया गया है. y इज 70 डिग्री प्लस z आपका है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस जब आप 70 एंड 45 डिग्री को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x आपका कैसे निकलेगा? 180 में से हम 115 डिग्री को माइनस कर देंगे. ओके, मतलब कि आपके पास तीनों ही एंगल्स का सम पता है 180 होता है. दो एंगल्स दे रखे, थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे. ओके, सो योर आंसर विल बी 65 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 65 डिग्री. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं.
लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, आपको ये एडजेसेंट फिगर दिया है. ओके, सो द ट्राइंगल कैन बी रिटन सिम्बॉलिकली एज, इसको सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल LMN. ओके, द साइड्स ऑफ द एंगल आर, साइड्स कौन सी एंगल्स की? दिस साइड LM, MN and LN. The vertices of the angles are, vertices आपके हैं L, M, N. And angles आपके, देखिए angles भी आपके यही होंगे, बस आपने एंगल का जो सिंबल है वो लगा देना है. ओके, राइट. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे. ओके